Hey you guys, my name is Manish Anand and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before I start today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to head to South Africa for their honeymoon after wedding. Arbaz Khan's sister Alvira visits his ex-wife Malaika Arora days after her accident. Post taking over Kabhi Eid Kabhi Diwali production, Salman Khan to turn director. Sara Ali Khan reveals her secret talent. आलिया और रणबीर अपने हनीमून पे साउथ अफ्रीका जा रहे हैं या मालदीव्स? शादी आरके हाउस में होगी या आलिया और रणबीर के बिल्डिंग वास्तु में? क्या आलिया और रणबीर ने अपने गेस्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से साइन करवाया है नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स? वी हैव ऑल द अपडेट्स फॉर यू ऑन द बिगेस्ट वेडिंग ऑफ द ईयर. रणबीर और आलिया की alleged शादी नजदीक आ रही है और बढ़ रही है बी टाउन में एक्साइटमेंट. The couple has been dating for 4 years now और बहुत इंतजार के बाद हमें होपफुली जल्द ही शादी की शहनाइयां सुनाई देंगी. Take a look. Ranbir and Alia are one of Bollywood's beloved couples and the pair has been in a committed relationship for a long time now. ब्रह्मास्त्र के सेट्स पे शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी और अब रूमर्स के मुताबिक दोनों बहुत जल्द बनने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस कपूर. There are many reports circulating about their wedding, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कुछ भी रिवील करेंगे तो आप गलत सोचते हैं. जी हां, आलिया और रणबीर ने allegedly विकी और कटरीना की तरह अपने सारे गेस्ट्स और वेंडर्स से एक NDA यानी एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाया है. That means they can't breathe a word to anyone. आजकल कई सेलिब्रिटीज ये करते हैं to ensure that the details of their wedding or wedding photos don't get leaked to the press. But we have still managed to find out that the Ranbir-Alia wedding venue may not be RK House after all. Yes guys, we have some inside information for you. हमारे highly placed sources ने ये शेयर किया है that Ranbir has reportedly booked the banquet at his building Vastu for 8 days from Saturday. Interestingly, Alia भी इसी बिल्डिंग में रहती है in a separate apartment on the 5th floor. शायद दोनों यही चाहते हैं कि उनकी शादी उन्हीं के बिल्डिंग में हो and that's why Ranbir has booked the banquet facility there. वैसे वास्तु is just a short distance away from Ranbir's childhood home Krishna Raj, जो फिलहाल रेनोवेट हो रहा है. Recently, Alia's manager and her head of security was spotted outside the Vastu building. A video of the duo chatting and inspecting the location has now gone viral. इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणबीर और आलिया की शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. We also have some news on the couple's honeymoon plans. Yes, that's right. हमें पता चला है कि रणबीर और आलिया अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं. The couple has been there on a holiday before and it looks like वो ट्रेडिशनल बीच हॉलिडेज की जगह अपने हनीमून पे जंगल सफारीज एंजॉय करेंगे. शादी चेंबूर में हो या बांद्रा में, हमें तो बस उस पल का इंतजार है जब आलिया और रणबीर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे. Are you guys also super excited about the wedding? मलाइका अरोरा से मिलने आई अरबाज और सलमान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और मलाइका की BFF करीना कपूर खान. मलाइका की गाड़ी का पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ था and the actor has been resting and recovering from minor injuries at home. Malaika and Arbaz separated many years ago, लेकिन वो आज भी खान फैमिली के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में है. Malaika Arora was married to Arbaz Khan for almost 16 years before they decided to part ways.
दोनों का एक बेटा है अरहान जो फिलहाल विदेश में पढ़ता है। इवन आफ्टर हर सेपरेशन फ्रॉम अरबाज, मलाइका आज भी खान परिवार के कई मेंबर से बहुत करीब है। इट्स ग्रेट टू सी कि अरबाज की सिस्टर भी उनसे मिलने आई एंड मेड टाइम टू चेक ऑन हर फॉर्मर सिस्टर इन लॉ। हियर्स द स्टोरी। Malaika has been home for the past few days as she recovers, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, बहन अमृता अरोरा और बेस्टी करीना कपूर खान उन्हें रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। Malaika had another special visitor recently, जब उनकी former sister-in-law यानी कि अरबाज और सलमान की बहन अलवीरा खान उनसे मिलने आई। मलाइका आज भी अलवीरा और सोहेल खान की वाइफ सीमा खान से बहुत करीब है। She also keeps in touch with her ex-husband Arbaz and is seen having meals with him when their son Arhan is visiting. मलाइका के एक्सीडेंट के बाद वो घर पे ही रेस्ट कर रही हैं और अलवीरा dropped in with her daughter to make sure she is recovering well. Alvira was dressed in a red floral shirt and blue jeans, जिसे उन्होंने एक्सेसराइज किया एक गोल्ड बैग के साथ। करीना कपूर खान भी आई अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने and the superstar looked her casual chic best in an oversized white shirt, white pajamas and matching loafers. उन्होंने अपने बालों को बांधे रखा हाई बन में and added a statement necklace to complete her cool summer look. करीना पहले भी मलाइका से मिलने आई थी and it looks like she is missing her close friend. कुछ दिन पहले जब करीना अपने गर्ल गैंग के साथ मनीष मल्होत्रा के घर पे हैंग आउट कर रही थी, मलाइका was the only one missing because of her accident. Looks like Bebo made sure to also spend time with her Malla and make sure she was recovering well. Hope you feel better very soon, Malaika. का सीक्रेट का टैलेंट कौन सा है? मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। वो कौन सी डिश है जो सारा अली खान की सबसे फेवरेट है? क्या है सारा के सीक्रेट टैलेंट्स और उनके पापा सैफ की कौन सी फिल्म उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है? Sara spills all the beans with her new social media post. Sara Ali Khan received great reviews for her performance as Rinku in Atrangi Re और बहुत जल्द वो विकी कौशल के opposite दिखेंगी in an untitled film. Sara is an upcoming millennial star जो अपने sense of humor और शायरी के लिए बहुत popular है। The actor never fails to have a good laugh और उनका यही casual हंसमुख nature उन्हें बहुत relatable बनाता है and netizens love to watch her quirky videos on social media. Take a look. सारा अली खान is a stylish young millennial, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने आप को ज्यादा सीरियसली ना लेने का स्वभाव उन्हें अपने बाकी कंटेम्परेरी से अलग करता है। She loves sharing videos with her cheesy शायरी, bad knock-knock jokes and keeps it as real as possible on social media. सारा ने एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है, जहां एक फोटोशूट के बीच she is seen answering some candid questions about her पसंद and नापसंद। सारा अलग अलग आउटफिट्स में नजर आ रही हैं as she answers questions about herself. सारा ने रिवील किया कि उनका सीक्रेट टैलेंट है सिंगिंग। का सीक्रेट का टैलेंट कौन सा है? मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। सारा अपने आप को फिट रखने के लिए रेगुलर वर्कआउट्स करती रहती हैं, लेकिन शी इज ऑल्सो अ बिग फूडी हु एंजॉयज हर मील्स। जब सारा से पूछा गया कि वो कौन से डिशेस हैं जिन्हें वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकती, तो सारा ने रिवील किया दैट शी कांट स्टे अवे फ्रॉम पिज्जा, छोले भटूरे एंड बेसन के लड्डू। इंटरेस्टिंगली जब सारा ने ये रिवील किया तब भी वो कुछ खा रही थी। वीडियो में सारा is also seen focusing hard on the photo shoot and checking the camera to see the pictures that the team clicked. While having another snack, सारा को पूछा गया कि उनके पापा की कौन सी फिल्म उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। She responded by saying कि ओमकारा और हम तुम उन्हें सबसे अच्छी लगती हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए सारा कैप्शन her post, eating or singing, which is my real skill. Please like, share and subscribe for more. Send in your vote, you know the drill. Yes, we do, Sara, और आपके रेगुलर दर्शक होने के नाते we really enjoyed this Get to Know Sara session a lot.
क्या सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली को प्रोड्यूस करने के साथ साथ डायरेक्ट भी करने वाले हैं? कुछ ही दिनों पहले ये खबर लीक हुई थी कि साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली पे एक साथ काम नहीं करने वाले। The producer decided to back out of the project after several creative and financial differences cropped up with Salman on the movie. सूत्रों के मुताबिक बागी 3, तड़प और बच्चन पांडे जैसी फिल्म्स के फेलियर ने साजिद को चौकन्ना कर दिया है। वो कभी ईद कभी दिवाली का सेटअप, बजट, स्क्रिप्ट और कास्टिंग भी रीवर्क करना चाहते थे। उन्हें फिल्म के प्रोस्पेक्ट्स को लेके सीरियस डाउट्स थे, लेकिन सलमान को फिल्म की कहानी पे पूरा विश्वास था। भाईजान इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे एंड ही हैड ऑलरेडी ब्लॉक्ड हिज डेट्स फॉर द मूवी। सलमान फेल्ट कि साजिद फिल्म की कहानी पे और उनके स्टारडम पे भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर साजिद को रिपोर्टेडली लगा कि सलमान उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हिज कंसर्न्स ऑन द प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड रेवेन्यू मॉडल। सुनने में आया था कि सलमान अब इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करेंगे अंडर द बैनर ऑफ सलमान खान फिल्म्स। अब जब सलमान इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, रूमर हैज इट दैट ही मे डायरेक्ट और को-डायरेक्ट द मूवी विद फरहाद सामजी। एक इनसाइड सोर्स के मुताबिक सलमान पिछले कई सालों से अपनी फिल्मों को गोस्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। द सोर्स रिवील्ड, who do you think directs most of the films that he has done in the past 4-5 years? Not a single frame goes into the end product without Bhai's consent. He has been sitting on the edit of every single frame of his films for a long time now. In the meanwhile, Salman also seems to have been working out in full josh at the gym. सलमान ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक पोस्ट अपलोड किया जहां उनका फेस विजिबल नहीं है, लेकिन सिलुएट में उनका रिप्ड फिजिक क्लियरली दिखाई दे रहा है। A netizen commented on the photo, "Sallu rocked, everyone shocked." Salman turning director or perhaps officially turning director is big news. Here's hoping कि उनका ये फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई से बेटर बिजनेस करे। अटली की अगली फिल्म के सेट से शाहरुख खान की फोटोज हुई लीक। शाहरुख खान was clicked as he drove an ambulance with a cloth wrapped around his face. Shahrukh's last big release was Zero, which hit the box office almost 4 years ago. Zero की रिलीज के बाद शाहरुख ने एक्टिंग से एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला लिया था, जो पैंडेमिक की वजह से काफी लंबा एक्सटेंड हो गया। Shahrukh has been busy shooting for Pathaan since last year and the movie will release in January next year. उन्होंने अटली की फिल्म के लिए भी शूट रिज्यूम कर लिया है और इसी महीने वो राजकुमार हिरानी के साथ भी काम शुरू करेंगे। Looks like it's going to be a very busy year for SRK. Take a look. SRK is making a comeback with not one but 3 back-to-back films. शाहरुख के 3 प्रोजेक्ट्स अब अंडर प्रोडक्शन हैं, पठान, अटली की अनटाइटल्ड फिल्म और राजकुमार हिरानी का इमिग्रेशन बेस्ड सोशल ड्रामा। स्पेन से लौटने के बाद शाहरुख ने अटली की फिल्म पे काम शुरू किया है और लीक्ड फोटोज में SRK का फेस कपड़े से ढका हुआ है और वो एक एम्बुलेंस चलाते हुए दिखाई देते हैं। अटली की ये फिल्म रिपोर्टेडली एक हाइस्ट बेस्ड थ्रिलर है जिसमें सदर्न सुपरस्टार नयनतारा भी मौजूद है। रिपोर्टेडली नयनतारा इस 10-day लॉन्ग स्केड्यूल में शाहरुख को ज्वाइन करेंगी। सुनने में आ रहा है कि शाहरुख का इस फिल्म में डबल रोल है एंड इन एडिशन टू हिम एंड नयनतारा इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी हैं। But in a major development we hear कि SRK इसी महीने से राजकुमार हिरानी के साथ अपनी तीसरी फिल्म पे काम शुरू करेंगे। जी हां, an inside source has revealed कि फिल्म सिटी में पंजाब को रिक्रिएट किया गया with an elaborate set और पूरी टीम 40 दिन तक वहां शूट करेगी। 40 days के बाद there will be a break between schedules and while Hirani edits what he has shot, शाहरुख खान अटली की फिल्म पे काम करेंगे।
Since he has a double role in the film, उन्हें इस प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. Shah Rukh is going to spend the next couple of months juggling the shoot schedules of these two films, including a long international schedule for Raju Hirani's next. Shah Rukh लंदन, बुडापेस्ट और फिर यूएस और कनाडा में शूट करेंगे. इस सब के बीच उन्हें टाइगर 3 में अपने कैमियो के लिए भी शूट करना है, जहां he is likely to make a crossover appearance as Pathan. Looks like 4 साल के इंतजार के बाद Shah Rukh is thoroughly enjoying himself going back and forth between his multiple projects. हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब शाहरुख खान फाइनली हमें बिग स्क्रीन पे दोबारा दिखेंगे. Well, guys, it's time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. बिग स्क्रीन्स पे बड़े बड़े मूवी स्टार्स को हम कई दिनों तक देख नहीं पाए, लेकिन स्मॉल स्क्रीन्स के सेलेब्स अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन करते हैं. So who were the small screen celebs making headlines today? Let's find out. करण कुंद्रा ने एक नया व्लॉग अपलोड किया है जहां उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश के साथ कुछ खास पल कैप्चर किए हैं. करण कुंद्रा has recorded तेजस्वी प्रकाश's journey to buy her fancy new car which reportedly costs 1 crore rupees. करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को छेड़ते हुए रिवील किया कि उनकी लेडी लव 1 करोड़ की कार खरीदने ऑटो में गईं. करण कुंद्रा is seen saying on the video 1 करोड़ की गाड़ी की डिलीवरी के लिए ऑटो में सिर्फ लड्डू जा सकती है. That's why I love her. He also asked तेजस्वी प्रकाश, एक बात बताओ, गाड़ी की डिलीवरी के लिए ऑटो में कौन जाता है? Well, looks like तेजस्वी प्रकाश likes to keep herself grounded and that's what truly makes her special. एकता कपूर ने पापा जितेंद्र के जन्मदिन पर एक खास वीडियो मोन्टाज अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है, जिसमें पूरी फैमिली की तस्वीरें हैं. जीतू जी is seen in the video with एकता कपूर, तुषार कपूर, his wife शोभा जी and both his beloved grandsons. एकता कपूर ने ये खास वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, Happy birthday to the one I owe everything to. You're my biggest blessing. Happy birthday, Papa. डेली सोप अनुपमा में ढेर सारा ड्रामा चल रहा है. एक तरफ मालविका, अनुज कपाड़िया और जी के शादी की तैयारियों में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी ओर तोशु, वनराज और बा दुख में डूबे हुए हैं. तोशु इज अपसेट विद अनुपमा अबाउट हर डिसीजन टू रीमैरी और अनुपमा के समझाने पर भी वो उससे नाराज ही रहता है. इसी नाराजगी की वजह से उसका किंजल से भी झगड़ा हो जाता है एंड ही ऑलमोस्ट एंड्स अप एक्सीडेंटली पुशिंग हर. क्या तोशु अपने गुस्से पे काबू कर पाएगा या फिर शाह परिवार में होगा कोई नया तमाशा? Shweta Tiwari is a devoted mother to her kids Palak Tiwari and Riyansh. While Palak Tiwari is pursuing her own career as an actor now, Riyansh abhi bhi chota sa hai. Shweta Tiwari has shared a heartwarming new photo on her social media page, jahan wo apne bete ke sath ek outdoor space mein pose kar rahi hain. Shweta Tiwari looks lovely in a light pink salwar kameez aur dono maa bete ek sath bahut khush lag rahe hain. Shweta Tiwari captioned her post, "Apnapan." And just like that, we come to the end of another day, another week, and another episode of Planet Bollywood. But we will be back again on Monday, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates on the go about your favorite celebrities. We'll see you guys again next week. Till then, take care and have a splendid weekend. Ciao.